Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and right now I'm going to start a topic National Clean Air Program in this video. The National Clean Air Program which is handled by the NGT. NGT full form is National Green Tribunal. So let's start with the topic why it was in news. You know the National Green Tribunal has directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to modify the National Clean Air Program which proposes 20 to 30% reduction of the air pollution by 2024. तो NGT गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को डायरेक्ट किया टू मॉडिफाई द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विच प्रपोजेस, जिसमें क्या चीज़ है 20% रिडक्शन है एयर पोल्यूशन की बाय द 2024 2024 तक एयर पोल्यूशन कम करना है 20 to 30%. What is NCAP, National Clean Air Program? It was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January 2019. तो 2019 की जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था. इट इज़ द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट. तो ये हमारे भारत का, हमारे देश का पहला एक ऐसा एफर्ट है जिसमें टाइम बाउंडेशन के साथ साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है. इट सीक्स टू कट आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द कोर्स. तो कोर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? दैट इज अ पर्टिकुलेट मैटर ऑफ डायमीटर 10 माइक्रोमीटर और लेस, और वी कैन से दैट द PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10. एंड द फाइन पार्टिकल, तो फाइन पार्टिकल में क्या आता है? दैट इज अ PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 5 years. और इस ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2019 के जनवरी में, पर इसका जो बेस ईयर है वो 2017 माना गया. तो बेस ईयर 2017. ओके, तो कोर्स में आता है PM10 एंड फाइन में आता है 2.5. The plan includes 102 non-attainment cities across 23 states and union territories were identified by the CPCB. CPCB की फुल फॉर्म है Central Pollution Control Board on the basis of the ambient air quality data between 2011 to 2015. तो इस प्लान में टोटल 102 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया अक्रॉस द 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. और ये सिटीज़ किसने आइडेंटिफाई की है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. दिस वाज आस्क्ड इन 2016-17 UPSC. तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है. तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन कौन सी होंगी? These are those that have fallen short of a national ambient air quality standard for over 5 years. जो national ambient air quality standard में कम आए हैं उनको ये कंसीडर किया गया हुआ है 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में. सो व्हाट्स अबाउट द NGT व्यू? बिकॉज ये तो प्रोग्राम था सारा का सारा, इनिशिएटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का था. तो NGT का इस पे व्यू क्या है? द एनफोर्समेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन required stern measures to adopt for a given effect to mandate international obligation related to environment quality, for which Environment Pollution Act 1986 was enacted. Okay, so the enforcement of the sustainable development principles and the public trust doctrine to give mandate internal obligation, तो जिस पे Environmental Protection Act 1986 enacted. And what is public trust doctrine? You know, it states that sovereign or state hold the trust of people to manage the designated resource for a benefit of the people. So this is the definition of the public trust doctrine. इसके अंदर कोई भी sovereign और state है to hold the trust of the people to manage the designated resources for the benefit of the people, and the right to clean air stood recognized as a part of right to life. Right to life is your article number 21. So right to clean air is a part of right to life, and failure to address air pollution is a denial to right of life. So right of life, that is a right to clean air. So right to clean air is under the right to life under article number 21. तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर सब कैटेगरीज में राइट टू क्लीन एयर भी मेंशन है. एंड नेक्स्ट इज NGT directions. The timeline to reduce air pollution by 20 to 30% by 2024 need to be
reduced and the target of reduction need to be increased. जो टाइमलाइन है उसको कम करना चाहिए और जो टारगेट है रिडक्शन का उसको बढ़ाना चाहिए, ये एनजीटी ने डायरेक्ट किया। ओके, तो एनजीटी क्यों न्यूज़ में आई है कि 20 to 30% जो रिडक्शन है इसकी वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए और जो टाइमलाइन 2024 है इस टाइमलाइन को कम कर देना चाहिए। It is suggested by ministry to review and action in the term to shift to e-vehicles and CNG vehicles, okay, and intensifying the public transportation system, mechanical cleaning of the roads, enhancement of the public parking facilities, improvement in fuel qualities and the traffic management. तो ये guidelines हैं और ये suggestions हैं, okay, जिसमें vehicles, CNG vehicles, public transportation system, mechanical cleaning of the roads, public parking facilities enhancement, fuel quality improvement and the traffic management. And it directed that State Pollution Control Board to ensure the assessment and installation of the requesting number of real-time online continuous ambient air quality monitoring system within the 6 months. तो ये भी उन्होंने कहा है कि it directed the State Pollution Control Board, जितनी भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको इंश्योर करना चाहे कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है तो इंस्टॉलेशन ऑफ द रियल टाइम ऑनलाइन कॉन्टीन्यूस जहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा सके विद इन अ 6 मंथ्स। तो ये डायरेक्शन दी गई है। एंड इट ऑल्सो डायरेक्टेड एन एक्सपर्ट टीम ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू डिज़ाइन अ मॉडल फॉर द सोर्स अपॉर्शनमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी assessment within the 2 months which may be replicated for all the non-attainment cities। और फर्दर गाइडलाइंस देखिए सोर्स अपॉर्शनमेंट और कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज यहाँ पर एक सोर्स अपॉर्शनमेंट की बात की जा रही है और एक कैरिंग कैपेसिटी। यू नो सोर्स अपॉर्शनमेंट मीन्स इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ड्राइविंग information about the pollution source and amount they contribute to ambient air pollution level, and the carrying capacity, that is a concept of address the question as how many people can permit it into any area without the risk of the degraded the environmental there। this is called the carrying capacity कि कितने लोग permitted है किसी एरिया में without the risk of the environmental degradation। this is the carrying capacity, okay। और source apportionment, that is ड्राइविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पोल्यूशन सोर्स। अब बात करते हैं एनजीटी के बारे में। यू नो एनजीटी एक स्पेशलाइज बॉडी है। इट वाज सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो 2010 एनजीटी ट्राइब्यूनल एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी थी बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। ओके, तो कौन कौन से केस इसमें जाते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड केस हो जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये केसेस जाती हैं। सो इट ड्रॉज इंस्पिरेशनल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल 21 हमने बात की, राइट टू लाइफ विच एश्योर द सिटीजन टू राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपका हेल्थी इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है, उसको इंक्लूड करता है। अब एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की जा रही है। यू नो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस क्या होती है आप सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट जब सेंटर स्टेट में कभी इशू आ जाता है और स्टेट वर्सेस स्टेट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चनिंग रिलेटिंग टू environment and damage to environment due to the specific activity, and it follows the principle of natural justice। तो एनजीटी है ये किसको फॉलो करती है? ये प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसको फॉलो करती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एंड एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अपील विद इन द 6 मंथ्स टू फिलिंग द सेम। 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी भी केस को डिस्पोज करना, ओके, ये इनका मैंडेट होता है। एनजीटी 6 मंथ्स के अंदर केस को सॉर्ट आउट कर देती है जब भी ये केस फाइल होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील फाइनली विद इन द 6 मंथ्स। एंड एनजीटी 5 प्लेस पे सिटिंग होती है। एक तो है न्यू दिल्ली जो प्रिंसिपल है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर अदर 4। ओके, एनजीटी तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है। अदर है भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड चेन्नई तमिलनाडु।
ओके, तो 4 स्टेट्स विद द 4 सिटीज। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। ओके, आई नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर इस तरह के आप और वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर my videos, like my videos, so I will come with a more videos like this. Okay, so this is for today in this video. Thank you.